Okay, in this video we're going to discuss past paper questions related to geometric progression. तो अगर आपने geometric progression वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आपसे क्वेश्चंस नहीं होंगे. तो पहले आप बेसिक्स वाली वीडियो देख लीजिए. I'll attach the link in the description and you can also find the link on top. ठीक है, वो आपको ऊपर मिल जाएगा. तो वो पहले देख लीजिए और उसके बाद फिर ये वाला क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें. ओके, तो इट्स question number 1. It's saying the first three terms of a geometric progression are y, 5y minus 4 and 8y plus 2. Find the two possible values of y. Okay, so I have to find the possible values of y. उन्होंने मुझे बताया कि the first three terms go like this. पहली y है, दूसरी 5y minus 4 है, तीसरी 8y plus 2 है. एक चीज जो मुझे पता है geometric progression में कि इनका जो common ratio होता है, common ratio of consecutive terms is the same. ठीक है, so if I say that 5y minus 4 upon y is equals to 8y plus 2 upon 5y minus 4. मैंने क्या किया, this term upon this term and this term upon this term, क्योंकि इनका common ratio same होगा तो मैं इनको equate कर सकता हूँ. ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, I'll take this portion, I'll cross multiply and I'll find my answer. तो मेरे पास आ रहा है 5y minus 4, ये cross multiply होकर whole square हो जाएगा and this y will get multiplied by this whole expression. तो I'll get y 8y plus 2. ठीक है, अब now I'm going to expand this by using the second identity. तो मेरे पास आ जाएगा 25y squared minus 5 into 4 20 20 into 40y minus plus 16 sorry plus 16 equals to 8y squared plus 2y. अब in order to form a quadratic equation you need to have 0 on one side. तो आपके पास यहाँ पे इधर शिफ्ट हो जाएगा तो you're going to get 25 minus 8, 25 minus 8 क्या होता है मेरे पास, that is 17. So I'm going to get 17y squared minus 42y plus 16 equals to 0. Okay, so let's solve this equation by using the quadratic formula, क्योंकि हम लोगों को वैसे चीज़ें इतना समझ में नहीं आएंगी. So let's use the quadratic formula and find my answer. तो मेरे पास हो जाएगा y equals to minus 42 plus minus under root b squared minus 4a into c upon 2a 2 into 17. ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला कैलकुलेटर में डालें सारी चीज़ें and get your answer. तो आपके पास हो जाएगा 42 plus 42 का square minus 4 into 17 into 16 upon 2 into 17. I'm getting the answer as 2. ठीक है, प्लस के साथ आंसर 2 आ रहा है और माइनस के साथ आंसर आ रहा है 8 upon 17. ठीक है, 8 upon 17. So yeah, these are the two values of y that I'm getting. So yeah, तो two possible values निकालनी थी, वो हम लोगों ने निकालनी. For each of these values of y, find the corresponding value of the common ratio. ठीक है, common ratio निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, next term over the previous term करना होता है. मैं just इसको कॉपी कर रहा हूँ नीचे लाके, ताकि हमारे पास जो consecutive terms थी वो हम लोगों को मिल जाए और फिर हम लोग common ratio निकाल सकते हैं. ठीक है, so if my value of y was 2, ठीक है, हमारे पास दो values आई थी ना, एक 2 थी और एक ही वाली थी. तो अगर हमारे पास value of y 2 रखते हैं तो मेरे पास जो सीरीज हो जाएगी वो जाएगी 2, 5 into 2 is 10, 10 minus 4 is 6. ठीक है, 5 into 2 is 16, 16 plus 2 is 18. ठीक है, तो मेरे पास हो जाएगा 2, 6, 18. मुझसे कह रहा है कॉमन रेशो निकालो, तो कॉमन रेशो मैं निकाल सकता हूँ, 6/2 कर लें या 18/6 कर लें, आपके पास आंसर सेम आएगा. तो 6/2 which is equal to 3. अब आप y की वैल्यू रखनी है आपको 8/17. ठीक है, तो आपके पास जो पहली टर्म होगी दैट वुड बी 8/17. The next term would be 5 into 8/17 minus 4. तो आप कैलकुलेटर से कर लें, 5 into 8/17 minus 4, you're getting minus 28/17. ठीक है, अगली टर्म निकाल लें तो हो जाएगा 8 into 8/17 8 into 8/17 plus 2. ठीक है, that is coming out as 98/17. ठीक है, अब आपके पास एक नजर आ रहा है कि आपके पास बीच में एक नेगेटिव साइन आ रहा है, so my value of r should be negative. हम लोग करेंगे क्या, this term over this term या फिर this term over this term कर लें, आपके पास आंसर सेम आना है. the value of r would be, और हम लोग यहाँ पे डिनोमिनेटर क्योंकि सबके दोनों के सेम है ना, तो हम लोग डिनोमिनेटर को नहीं लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा. सो जस्ट डिवाइड द न्यूमरेटर विद द न्यूमरेटर. तो -28/8 हो जाएगा. 28 divided by 8 is 7/2. ठीक है, तो -7/2
3.5 or you can just write minus 7.2. That is acceptable as well. ठीक है, ओके अगला सवाल करते हैं। ये सवाल उससे डिफरेंट है, ये दूसरा सवाल है। ओके एक्चुअली सारे क्वेश्चन पार्ट 20 थे यूजुअली वो ज़्यादातर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के थे, तो इस वजह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अलग से नहीं लिखा हुआ। Okay. This is a different question. It's saying the third term of a geometric progression is 12 and the sixth term is minus 96. Find the sum of the first 10 terms of this progression. कह रहे थर्ड टर्म 12 है, यानी T3 जो है वो 12 है और T6 जो है वो minus 96 है। Find the sum of the first 10 terms of this progression, यानी मुझे S10 निकालना है। ठीक है, तो SN का फॉर्मूला क्या होता है? SN का फॉर्मूला होता है A1 minus RN over 1 minus R। ठीक है, ये मेरे पास फॉर्मूला होता है। okay. तो इसके लिए I need to know the first term। ठीक है, I need to know the common ratio और मुझे n की वैल्यू पता है क्योंकि मुझे सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स निकालना है, तो n की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। ठीक है, आई स्टिल नीड टू नो द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो। तो मैं फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो कैसे निकालूंगा? मुझे एक चीज और पता है कि मेरे पास कोई सी भी टर्म कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला ARN-1। सो इफ आई हैव टू फाइंड द थर्ड टर्म आई कैन रिप्रेजेंट द थर्ड टर्म विद दिस फॉर्मूला ओवर हियर। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? ARN की वैल्यू वुड बी 3 minus 1 is 2 equals to 12। I can make A the subject, this becomes 12 upon R squared। ठीक है, इसके लिए भी यही काम करेंगे। मेरे पास हो जाएगा ARN-1 will be 6 minus 1 which is equal to 5 equals to minus 96। I'm going to get R5 equals to minus यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? I can substitute this value of A over here। ठीक है, तो I'm going to get 12 upon R squared to R to the power 5 equals to minus 96। Whenever you have the bases as your bases are same, you can subtract your powers। तो मेरे पास हो जाएगा R5 minus 2 हो जाएगा cube equals to minus 96। I'll divide this 12 on the other side, so I'll get R cube equals to 96 12 is 8। तो मेरे पास आ रहा है minus 8। My value of R, if I take cube root on both the sides, my value of R will come out as minus 2। Once I get the value of R, I need to find the value of A। तो मेरे पास जो A की वैल्यू हो जाएगी 12 upon minus 2 squared, which is 12 upon 4। 12 upon 4 मेरे पास किसके बराबर होता है? 3 के बराबर होता है। So I got the value of A as 3, I got the value of R as minus 2। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे सिंपल सम निकालना है। ठीक है, तो सम के लिए I'll use this formula over here। ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा? सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स निकालना था, तो मेरे पास जाएगा S10 equals to A which is 3 1 minus R की वैल्यू इज -2। ठीक है, तो हम लोग -2 को ब्रैकेट में डालेंगे। N की वैल्यू क्या है? जो मैं S10 निकालना है तो द वैल्यू ऑफ N is 10। ठीक है, अपॉन 1 minus R, द वैल्यू ऑफ R was -2, तो -2 को ब्रैकेट में डाला। तो अब आप इसको कैलकुलेटर में कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सो बी 3 1 minus 2 to the power of 10 over the answer that I am getting is minus 1023। ठीक है, that is S10 that I get। ठीक है, if you have any confusions related to any particular question, you can mention those confusions in the comments below। I will probably answer all of those questions। Let's take another question over here। यहाँ मुझसे क्या है? The seventh and ninth terms of a geometric progression are 27 and 243 respectively। Given that the geometric progression has a common ratio, has a positive common ratio, find this common ratio। There are two ways to go about this। Let's talk about the one which we have already done। तो मेरे पास क्या है? T7 equals to 27 and T9 equals to 243। सही है, मैं क्या करूँगा? T7 को I can represent T7 as ARN-1 से अगर मैं इसको represent करने की कोशिश करूँ, so I'm going to get AR7 minus 1 which is 6 equals to 27। so I'm going to get A equals to 27 upon R to the power of 6। ठीक है, अगर मुझे T9 को represent करना है by the formula Tn equals to ARN-1, तो मेरे पास क्या आएगा? AR8 equals to 243। मेरे पास, अब मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा यहाँ पे। I'm going to get 27
over R6 to R8 equals to 243. मेरे पास आ जाएगा R8 माइनस 6 हो जाएगा R स्क्वायर, वहाँ पे हो जाएगा 27, मतलब जाके डिवाइड हो जाएगा 243 के साथ. 243 divided by 27 will give me 9. I'll get the value of R whenever I take the under root on both the sides, I'll get two values plus and minus. लेकिन यहाँ पर उन्होंने मुझे मेंशन किया हुआ है कि I have a positive common ratio. So whenever I have a positive common, मतलब obviously मेरे पास दो आंसर आ रहे हैं, तो फिर मैं नेगेटिव वाला आंसर नहीं लूंगा, मैं सिर्फ पॉजिटिव वाला आंसर लूंगा, which is +3. Okay, it's saying the 30th term, find the 30th term, giving your answer as a power of 3. 30th term निकालने के लिए again I'll have to make use of the formula Tn equals to ARn minus 1. So मैं Tn की वैल्यू T30 निकालें तो n की वैल्यू 30 हो जाएगी, तो T30 निकालना है. A की वैल्यू हो जाएगी 27 ओवर R6 था ना, तो R की वैल्यू मैं रख दूंगा 3 to the power 6 into Rn minus 1, which is 330 minus 1, which is 29. ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लें कैलकुलेटर में, तो आपके पास आ जाएगा 27 3 power 6 into 3 power 29. तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है, so giving your answer as a power of 3. Okay, so I'll have to convert everything to the power of 3. तो मेरे पास आ जाएगा 3 to the power 3 over 3 to the power 6 into 3 to the power what 29. ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मेरे पास पावर्स ऐड होंगी, ये जो पावर ये डिवाइड हो रही है, ये डिवाइड हो रहा है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी. तो आई एम गोइंग टू गेट 3 plus 29 minus 6. So my answer would be 3 plus 29 minus 6, which is equal to 26. So 3 to the power 26 मेरा आंसर है. ठीक है, आगे चलना. It's saying explain why the geometric progression 1 sin theta sin square theta where theta is in radians has a sum to infinity. अच्छा, हमने एक चीज पढ़ी थी कि हमारे पास sum to infinity सब जब आता है जब मेरा प्रोग्रेशन जो है वो कन्वर्जेंट हो, यानी मेरी r की वैल्यू इज बिटवीन 1 एंड -1. ठीक है, ओके. तो मैं देखते हैं यहाँ पे क्या करना है हमें. तो हमारे पास पहले r देखते हैं, r की वैल्यू आ क्या रही है. तो r की वैल्यू आ रही है साइन थीटा अपॉन 1 या फिर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, दोनों से आपके पास एक ही आंसर आएगा, विच इज इक्वल टू साइन थीटा. यू गेटिंग द वैल्यू ऑफ r एज साइन थीटा. उन्होंने आपको थीटा की लिमिट्स दी हुई हैं कि वो -π/2 से लेके π/2 तक वैलिड है. सही है. इफ यू मेक अ ग्राफ, इफ यू मेक अ साइन ग्राफ, नॉर्मल साइन कर्व, ठीक है, यू नोटिस वन थिंग. ओके, तो मेरे पास यहाँ पे 1, लेट्स टेक दैट एज 1 और लेट्स टेक दैट एज -1. मुझे पता है मेरे पास साइन नॉर्मल साइन कर्व का मैक्सिमम होता है 1 और माइनस मिनिमम होता है -1. इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0. ठीक है, मेरे फर्स्ट इंटरवल पे गोज टू द मैक्सिमम. ठीक है, फर्स्ट इंटरवल पे माय वैल्यू इज 90, बट सिंस वी आर डीलिंग इन रेडियंस आई विल राइट π/2. ठीक है, अब क्योंकि π/2 तक जाना था, π/2 से आगे नहीं जाना था, मैं आगे नहीं जा रहा. ठीक है, हमें नीचे भी, मुझे पीछे भी जाना है -π/2. So I'll just backtrack a little. So yeah, and I'm going to get the minimum at -π/2. ठीक है, तो मेरे पास मिनिमम आ जाएगा -π/2 से. One thing that you need to notice over here is कि π/2 and -π/2 is not included in your limits. ठीक है, थीटा की लिमिट्स में π/2 -π/2 इंक्लूडेड नहीं है. इसका क्या मतलब है, यहाँ पे इक्वल्स टू साइन नहीं लगा हुआ ना. ठीक है, अगर इक्वल साइन नहीं लगा हुआ इसका मतलब है कि ये इंक्लूडेड नहीं है. अच्छा, तो हमें क्या नजर आ रहा है, हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यूज हैं, रेंज जो है दैट इज बिटवीन 1 एंड -1. तो वैल्यू ऑफ r इज बिटवीन 1 एंड -1. ठीक है, सो इफ माय वैल्यू ऑफ r इज बिटवीन 1 एंड -1, ठीक है, क्योंकि -1 और -1 मेरे पास इंक्लूडेड नहीं होंगे. π/2 पे वैल्यू 1 आ रही है, सिंस π/2 इज नॉट इंक्लूडेड, 1 won't be included as well. And since -π/2 is not included, -1 would not be included as well. ठीक है, since my value of r is between 1 and -1, my series is convergent. So yeah, is convergent, and then therefore it will have a sum to infinity. I hope it makes sense. I just hope it makes sense कि मैं क्या बोल रहा हूँ. Let's move forward.
I have another question. It's saying the first 5 terms of a sequence are given below. अब इसमें यहाँ पे बताया नहीं गया ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, कौन सा सीक्वेंस है. ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें फिगर आउट करना पड़ेगा कि यार सीक्वेंस कौन सा है. एक चीज हमें नजर आ रही है कि हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस होता है. ठीक है, तो देखते हैं कि कॉमन डिफरेंस इनका सेम है. -2 -4 दैट वुड मेक इट -6. 1 -2 वुड मेक इट 3. तो कॉमन डिफरेंस तो सेम नहीं है, तो अरिथमेटिक सीरीज नहीं हो सकती. ठीक है, अब देखते हैं कि कॉमन रेशो सेम है. अगर कॉमन रेशो सेम हुआ इसका मतलब है कि ज्योमेट्रिक सीरीज हो सकती है. ठीक है, तो -2/4 देखते हैं. तो मेरे पास आ रहा है -2/4 इज -1/2 एंड 1/-2 इज ऑल्सो -1/2. इसका मतलब है कि दिस इज ए ज्योमेट्रिक सीरीज. अगर आप आगे भी देखेंगे तो आपके पास आगे भी कॉमन रेशो सेम आ रहा होगा. ओके, ज्योमेट्रिक सीरीज में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं. वन इज द फर्स्ट टर्म व्हिच इज a is equal to 4 and the other one is the common ratio which is next over the previous. ठीक है, next over previous. तो आप 1/-2 कर लें तो आपके पास जो r की वैल्यू आ रही है that is coming out as -1/2. So you got the value of r, you got the value of a. अब आपको क्या करना है, आपको 20th टर्म निकालनी है. तो 20th टर्म निकालने के लिए मेक यूज ऑफ द फॉर्मूला a(r(n-1). तो t20 would be equal to a is 4, r is -1/2, -1/2, n-1 क्या हो जाएगा, n-1 क्या हो जाएगा 19. ठीक है, तो इसको कर लेते हैं. दिस विल बिकम 1 -1/2 into power 19, sorry, power 19, and I'm getting a very small answer which becomes -1/131,072. You can leave your answer in fractions. No, it is fine. ठीक है, I was saying explain why the sum to infinity exists for this sequence and find the sum to infinity. हमने एक चीज डिस्कस की थी कि हमारे पास जब कभी भी r की वैल्यू बिटवीन 1 and -1 होगी, मेरी सीरीज कन्वर्जेंट होगी and my sum to infinity is going to exist. तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे since the value of r is between 1 and -1, between 1 and -1, the series is convergent, and sum to infinity exists. To infinity exists. ठीक है, फिर हमें क्या करना है, सम टू इन्फिनिटी निकाल के भी दिखाना है इनको. तो सम टू इन्फिनिटी निकाल लेते हैं. सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला हमने ऊपर देखा था, ऊपर नहीं पिछली वीडियो में देखा था, a/1 - r. So the value of a is what? The value of a is 4, the value of r is -1/2. So I'll write this as 4, take the value of r as -1/2, use your calculator or your mind to get your answer. ठीक है, तो कर लेते हैं इसको. 1 + 0.5 is 8/3. So the sum to infinity is coming out as 8/3. ठीक है, एक और सवाल करते हैं. I think this is the last question that we have to do. हाँ, ये आखिरी नहीं, एक और सवाल भी है. बहुत सवाल है यार. ओके, चलो ये भी करते हैं. Okay, geometric progression has a second term of 27p squared and the fifth term of p to the power 5. The common ratio r is such that r is between 0 and 1. अगर r between 0 and 1 भी है तो हम लोग फिर भी कह सकते हैं कि हमारे पास ये एक convergent series होगी जिसका sum to infinity exist करेगा. ठीक है, again find r in terms of p. So what do we know? We know that the second term 3(2) is 27p squared and t5 is p to the power 5. ठीक है, we need to find r in terms of p. तो निकाल लेते हैं. t2 के लिए I can make use of the formula tn equals to ar(n-1). हाँ, ठीक है, तो t2 के लिए मेरे पास ar(n-1) क्या हो जाएगा, ar2 - 1 which is equal to 1. 27p squared. I can find a, I can get a in terms of r and p. अब क्या करना है मुझे, इस जो वैल्यू a की आ रही है इसको इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है. सिंपल एज दैट. t5 से मेरे पास आएगा 8r to the power 4 equals to p5. यहाँ पे a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, 27p squared upon r into r4 equals to p to the power 5. अब बेसिस सेम है, पावर्स सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, तो I'm going to get r cube. This 27p squared will go on the other side and I'm going to get 20p power 5 over 27p to the power 2. ठीक है, एक्सक्यूज माई हैंड राइटिंग, बहुत गंदी हो रही है अभी. अब क्या हो जाएगा मेरे पास,
पी बेसिस से मैं अगेन पावर सब्ट्रैक्ट हो सकती है, तो 5 - 2 हो जाएगा इन माई न्यूमरेटर, ठीक है, तो 5 - 2 इज 3, इन द डिनोमिनेटर आई हैव 27, ठीक है, तो मेरे पास 27 आ जाएगा। अब क्या करना है, इन ऑर्डर टू गेट द वैल्यू ऑफ आर आई हैव टू टेक क्यूब रूट ऑन बोथ द साइड्स, तो इधर भी क्यूब रूट और इधर भी क्यूब रूट लेना है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आर इक्वल्स टू पी क्यूब का क्यूब रूट वुड बी पी, 27 क्यूब रूट होता है 3, तो माय वैल्यू ऑफ आर कम्स आउट एज p अपॉन 3। नाउ इट्स सेइंग hence find in terms of p the sum to infinity of the progression। sum to infinity निकालने के लिए आपको a की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, आपको सिर्फ r की वैल्यू पता चली है, a की वैल्यू आपको पता है 27 p स्क्वायर्ड अपॉन r, तो इसमें r की वैल्यू को प्लग इन कर लें, 27 p स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय r है ना, तो मैं यहाँ पे डिवाइड बाय p अपॉन 3 लिख रहा हूँ, सही है। डिविजन कैन चेंज इनटू मल्टीप्लिकेशन बट आई हैव टू टेक द रेसिप्रोकल ऑफ माय फ्रैक्शन एज वेल, तो रेसिप्रोकेट कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, तो मेरे पास आ गया 3 अपॉन p। I'll cancel out p with this p, तो मेरे पास आ जाएगा 27 into 3, 27 into 3 is 81, तो my answer for a is 81p। So I got the value of r, I got the value of a, I can find the sum to infinity now, sum to infinity is a over 1 minus r, so a is 81p, 1 minus r की वैल्यू is p upon 3। तो अब आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको, तो ये जगह 81p डिवाइडेड बाय 1 minus p upon 3, 1 minus p upon 3 का आप एलसीएम लें तो you're going to get 3 minus p upon 3, ठीक है, take the reciprocal as well, when you get 81p multiplied by 3 upon 3 minus p, ठीक है, I should just move this one down, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 81 into 3 क्या होता है, 81 into 3 is 243, 243p over 3 minus p। ओके, अब क्या करना है, ये निकाल लिया हमने सम टू इन्फिनिटी इन टर्म्स ऑफ p। नाउ इट्स सेइंग गिवन दैट द सम टू इन्फिनिटी इज 81, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अपने समझ में अगर सम टू इन्फिनिटी की वैल्यू मैंने बता दी है कि वो 81 के बराबर है, तो आई ऑलरेडी फाउंड आउट सम टू इन्फिनिटी इन टर्म्स ऑफ p, ठीक है, सो आई कैन इक्वेट दैट विद 81, so I can write 243p upon 3 minus p equals to 81, cross multiply and you'll get your answer। तो आपके पास हो जाएगा 243p equals to 81 into 3, which is what, 81 into 3 is 243 minus 81p। This 81 will go on the other side and will be added with 243, to 243 plus 81 मेरे पास होता है, क्या हो गया यार, 243 करना ना, 324, 324p equals to 243, तो डिवाइड करवा लें, is 3/4, ठीक है, the value of p is coming out as 3/4। ओके, अब ये आखिरी सवाल है, बस मैं आखिरी सवाल कह रहा हूँ उसके बाद, हाँ ये आखिरी है। Okay, now it's saying the geometric progression is such that its sum to 4 terms is 17 times its sum to 2 terms, ठीक है, geometric progression is such that its sum to 4 terms, ठीक है, यानी S4 is equals to 17 times the sum to 2 terms, यानी S2, 17 times of S2। It is given that the common ratio of the geometric progression is positive and not equal to 1, ठीक है, common ratio जो positive है और 1 के बराबर नहीं है। Find the common ratio of the geometric progression, कह रहा है geometric progression का common ratio निकालो, तो हमारे पास तो सिर्फ एक ही हिंट है, सही है, and I'll have to use that to find the value of the common ratio। Let's do that। हमें एक चीज पता है कि हमारे पास जो Sn होता है उसका फॉर्मूला होता है a1 minus rn over 1 minus r, ठीक है, और यही फॉर्मूला यूज करेंगे टू गेट आवर आंसर। मेरे पास जाएगा a1 minus r to the power 4, इसमें क्योंकि मेरे पास S4 है तो n की वैल्यू 4 होगी, over 1 minus r equals to 17 a 1 minus r to the power 2 over 1 minus r, ठीक है। अच्छा, एक चीज आपको नजर आ रही है कि आपके पास 1 minus r और 1 minus r यहाँ पे सेम है और a सेम है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आई कैन शिफ्ट a ऑन द अदर साइड एंड आई कैन शिफ्ट 1 minus r ऑन द अदर साइड एज वेल, टू जस्ट टू कैंसिल देम आउट, ठीक है, तो मेरे पास हो जाएगा 1 minus r, ठीक है, और यहाँ पे मैं a को डिवाइड करवा रहा हूँ, और ऊपर मेरे पास आ जाएगा 1 minus r, 1 minus r to the power 4
इक्वल्स टू 17, यहाँ पे a चला गया, 1 माइनस आर चला गया, मेरे पास 1 माइनस आर स्क्वायर बच गया। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो गया, a और a कैंसिल हो गया, सो आई विल बी लेफ्ट विद 1 माइनस आर टू द पावर 4 इक्वल्स टू 17 1 माइनस आर स्क्वायर्ड। अच्छा, एक काम आप और भी कर सकते हैं, जस्ट टू मेक इट सिंपल, यू कैन अप्लाई द थर्ड आइडेंटिटी ओवर हियर। ठीक है, एंड हाउ विल यू बी एबल टू अप्लाई द थर्ड आइडेंटिटी? 1 माइनस आर टू द पावर 4 में अब आई कैन राइट 1 as, आई कैन राइट लाइक दिस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल टू 17 1 माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 1 माइनस आर स्क्वायर और 1 माइनस आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, दोनों तरफ सेम आ रहा है, तो आई कैन कैंसिल इट आउट, आई कैन डिवाइड इट ऑन द अदर साइड, तो मेरे पास ये कैंसिल हो जाएगा। आई विल बी लेफ्ट विद 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 17। अब सवाल थोड़ा सा आसान हो गया, तो आर स्क्वायर बी इक्वल टू 16 एंड आई विल टेक अंडर रूट ऑन बोथ द साइड्स। I'm going to get what? I'm going to get, एक मिनट, मेरे पास आंसर आएगा प्लस माइनस 4, लेकिन उन्होंने जो क्वेश्चन में बताया हुआ है कि मेरे पास जो r की वैल्यू है that is not negative, it is positive, तो मेरे पास r की वैल्यू से just be प्लस 4। ओके, कॉमन रेशियो आ गया, अब क्या करना है? It's saying given that the sixth term of the geometric progression is 64, find the first term। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म हम लोग आराम से इसके थ्रू निकाल सकते हैं। तो हमारे पास r की वैल्यू 4 है, 6 टर्म निकालने के लिए आई हैव टू यूज a r n माइनस 1, तो 6 माइनस 1 विच वुड बी 5। इसकी वैल्यू मैंने मुझे दी हुई है 64, तो दिस इज इक्वल टू 64। सही है, आई नो द वैल्यू, द कॉमन रेशियो इज 4, सो आई विल टेक 4 to the power 5 equals to 64, so I'll get 64 upon 4 to the power of 5 is equal to 1 upon 16। ठीक है, ये मेरे पास 1 upon 16 आ गया। आखिरी सवाल मुझसे कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई दिस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन डज नॉट हैव अ सम टू इंफिनिटी। कह रहा है इसका सम टू इंफिनिटी क्यों नहीं होगा? सम टू इंफिनिटी किन टर्म्स का होता है जिनकी वैल्यू ऑफ r इज बिटवीन 1 and -1। ठीक है, सिंस द वैल्यू ऑफ r, सिंस r इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, ठीक है, r की वैल्यू 4 है ना, r इज ग्रेटर देन 1, r 4 है, ठीक है, r इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, सम टू इंफिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट, सम टू इंफिनिटी विल नॉट एग्जिस्ट, will not exist. This is it for today's video. If you have any questions, so feel free to ask in the comment section. I will hopefully respond to all of your queries, inshallah. Okay, Allah Hafiz.